Hello students, welcome to the video series of e-commerce. Today we are going to discuss about the second part of unit encryption that would include the following topics: data encryption standard, triple encryption, digital signatures, and virtual private network. So let us start with the data encryption standard or DES. So it is a very popular encryption technique that we use or algorithm that we use in which a 64-bit of message is used with a secret key, and it is a very popular technique to be used which is based on the FIPS cipher encryption or FIPS cipher technique. So let us see what is it. DES, developed by IBM, was published as Federal Information Processing Standard or FIPS, describes the data encryption algorithm. So basically it was developed by the IBM and it was used for US Federal Information Processing Standard, and so it was priorly named as FIPS. DA is a symmetric cryptosystem and was originally designed for implementation in hardware. So basically, priorly when it was developed for the hardware implementation. Basically, it was designed for the hardware configuration or hardware cryptosystem in which we have used the symmetric encryption or symmetric cryptosystem, wherein we use the mechanism of secret key, and DEA, which is data encryption algorithm, has a 64-bit of block size, that is the message content would be of 64-bit, and which uses 56-bit key during execution. So basically as we have seen in the symmetric and asymmetric encryption, that we uses keys in order to encrypt our message and an algorithm. So algorithm in and plus the key would be used for the entire crypto system. So basically in this a 64-bit of message is used and a 64-bit key will be used, but 8 bits will be used for the error detection, that will be used as a parity bits. So that is why it is said that the key will be of 56-bit while we will be executing the algorithm, and the sender and receiver must know the same secret key. Here we are going to use the symmetric crypto system, therefore the one key would be shared, and that would be the secret key of the sender and the receiver, which can be used to encrypt and decrypt the message. So basically we know that in symmetric system we use the same key for encryption as well as for the decryption. Now, DES is based on a mono-alphabetic substitution cipher using a 64-bit character. Whenever the same 64-bit plaintext block goes in, the same 64-bit ciphertext block comes out. So here we are trying to talk about the mechanism of DES, that in DES what we used to do is, we know that we have 64-bit of text, 64-bit of plain text in which different characters are to be placed, and those different characters are to be encrypted. Now mono-alphabetic substitution cipher means that each alphabet would be substituted by some other character. This is what substitution cipher does. So substitution means one character, suppose A is there, A would be replaced by some other alphabet or any other character that would be based on the substitution standard or substitution mechanism, what type of substitution we are going to use, whether we are going to replace A with E or whether we are going to replace A with any of the particular letter. So basically substitution में क्या होता है कि हम किसी एक अल्फ़ाबेट, सपोज करो हम अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को हम कोई दूसरे अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करेंगे, और इसी तरीके से हम एक मैकेनिज्म पूरा फॉलो करते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वहाँ पे वो सारे के सारे सेम मैनर में रिप्लेस किए जाएंगे. तो उसके लिए हम एक डेफिनेटली एक मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यूज होगा 64-बिट कैरेक्टर्स के लिए, और जहां पर भी हमारा 64-बिट का प्लेन टेक्स्ट यूज करेंगे वो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए एज एन इनपुट काम करेगा, और जब हम उस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करते हुए देखते हैं कि आउटपुट हमें जो मिलेगा वो सिफर टेक्स्ट मिलेगा 64-बिट का.
तो अब इसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं, किस किस तरीके से मैकेनिज्म इसका फॉलो होगा. द फर्स्ट स्टेज इज अ की इंडिपेंडेंट ट्रांसपोजिशन ऑन द 64 बिट प्लेन टेक्स्ट. यानी वो जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा उस पर हम ट्रांसपोजिशन अप्लाई करेंगे यूजिंग द की. की क्या करता है, ट्रांसपोज करता है, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में यूजिंग द एल्गोरिथम इटसेल्फ. एंड द लास्ट स्टेज इज द exact inverse before that before that is an exchange of the leftmost with the rightmost 32 bits. तो ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे पॉइंट कि किस तरीके से हम जो हमारी 64 बिट्स होती हैं उनको हम स्प्लिट कर देते हैं 32 बिट्स में, और 32 लेफ्ट मोस्ट बिट्स होती हैं, 32 राइट मोस्ट बिट्स होती हैं, जिनको हम किस तरीके से फंक्शंस और कीज़ के थ्रू पास करके और फिर उनको एक्सचेंज करते हैं. बेसिकली जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है वो राइट मोस्ट के लिए इनपुट हो जाता है, और जो राइट मोस्ट का फंक्शन को के पर अप्लाई करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट के लिए इनपुट बन जाता है. तो ये पूरे के पूरा मैकेनिज्म जब हम देखेंगे लाइवली, यानी कि लाइव सेशन में पूरा मैकेनिज्म एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, तब ये ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. द रिमेनिंग 16 स्टेजेस आर फंक्शनली आइडेंटिकल बट आर पैरामीटराइज्ड विद बाय डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द की. तो होगा क्या कि ये क्योंकि हमारा DES फीस्टल सिफर पर डिपेंड करता है. फीस्टल सिफर क्या होता है, उसमें हमारे 16 राउंड्स होते हैं. तो एक राउंड में क्या होता है कि इनपुट होगा, की होगी और एल्गोरिथम होगा. अब इनके कॉम्बिनेशन से सिफर टेक्स्ट निकल के आता है, फिर दोबारा से उस पर सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, और ऐसे ऐसे करके 16 टाइम्स होता है. तो इसी तरीके से डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में भी 16 स्टेजेस के थ्रू वो इनपुट पास होगा और फाइनली हमें जाके आउटपुट मिलता है जो हमारा प्रॉपर सिफर टेक्स्ट होता है. तो ये हमारा DES था. अब हम बात करेंगे ट्रिपल DES की. तो ट्रिपल DES नाम से पता चल रहा है, DES को जब हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो वो ट्रिपल DES बन जाता है. अब बेसिकली ऑब्वियसली के एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसे हम ऑलरेडी 16 टाइम रिपीट कर रहे हैं DES में, अगर उसे हम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी मोर सिक्योर. वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा उसमें कोटिंग हो जाती है बेसिकली वी मस्ट से एनक्रिप्शन की, तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, उसे ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होगा. सो ट्रिपल DES इज अ माइनर वेरिएशन ऑफ DES. इट इज़ 3 टाइम्स स्लोअर देन DES बट कैन बी मिलियंस ऑफ टाइम्स सिक्योर. अगर हम DES को प्रॉपर्ली ट्रिपल DES को प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो वो DES से कई ज़्यादा सिक्योर है. स्लो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि वी आर गोइंग टू रिपीट इट 3 टाइम्स. Since 3DES is based on a DES algorithm, it is very easy to modify existing software to use 3DS. क्योंकि ऑलरेडी DES को हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है क्योंकि वो पुरानी एल्गोरिथम है, तो 3DS उसी का ही न्यू वर्जन है. सो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारा उसे भी डेफिनेटली अडेप्ट कर लेता है ईजिली. It has the advantage of proven reliability and a longer key length that eliminates many of the shortcut attacks. तो इसमें क्योंकि reliability होगी, क्योंकि ज़्यादा longer key length है, तो इसीलिए इसमें जो हमारे attacks होते हैं छोटे मोटे या कोई भी जो हमारे try करेंगे कि बेसिक अटैक्स जो होते हैं उनसे डेफिनेटली हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं या प्रिवेंट हो सकते हैं. इट टेक्स 364 बिट कीज. अब इस ट्रिपल DES में किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि इसमें जो की होगा वो 64 बिट का होगा, एक की. इसी तरीके से हम एक साथ 3 की का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 कीज होंगी और हर एक की 64 बिट की होगी. तो ओवरऑल कितनी हो गई, 192, यानी कि 64 + 64 + 64, तो 192 बिट की कीज हो गई जिसे एक साथ यूज़ किया जाता है पूरे प्रोसेस के लिए. पूरा 192 बिट की जो होगा वो हम एक साथ यूज़ करेंगे रादर देन एक बार में एक की को अप्लाई कर रहे हैं. तो द प्रोसीजर फॉर एनक्रिप्शन इज एग्जैक्टली सेम एज द रेगुलर DES बट इट इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स. ये हमें पता ही 3 बार रिपीट होने वाला है प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम 3DES है. द डेटा इज इनक्रिप्टेड विद द फर्स्ट की. अब यहाँ पे डेटा को जब हम इनक्रिप्ट करेंगे पहली बारी तो वो फर्स्ट की से इनक्रिप्ट हो जाएगा. उसके बाद हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं फिर से सेकेंड की का यूज़ करके.
और फिर फाइनली फिर से हम क्या करने वाले हैं, थर्ड की हेल्प से फिर से उसे इनक्रिप्ट करने वाले हैं, यानी कि हमने कोड किया, डीकोड किया एंड देन अगेन कोडिंग कर दी विद अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डेफिनेटली सिक्योर हो गया। द इफेक्टिव की स्ट्रेंथ फॉर DES इज एक्चुअली 168 बिट बिकॉज ईच ऑफ द 3 keys contain 8 parity bits that are not used during encryption process. Parity bits are used for error detection। जैसे कि हमने पहले भी देखा था DES में कि जो 64 बिट होता था हमारे पास की का, उसमें से सिर्फ 56 बिट ही की हम यूज कर पाते थे, क्योंकि जो 8 बिट्स होते थे वो पैरिटी बिट्स होते थे। अब यहाँ पर तो 3 बार 64 बिट्स है, तो 3 टाइम्स जो हमारे होंगे 8 पैरिटी बिट्स वो रिमूव होते जाएंगे, तो हमारे पास जो टोटल की होगा, की ब्लॉक साइज होगा वो 168 बिट का होगा। तो इस तरीके से हम ट्रिपल DES का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लाइव सेशन में। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। देखिए, जिस तरीके से हमारे किसी भी पर्टिकुलर नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम सिग्नेचर कर देते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाता है, ज़्यादा रिलायबल हो जाता है और ज़्यादा कन्फर्म्ड हो जाता है। इसी तरीके से जब हम डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी तरीके के एक अग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट अस डिस्कस व्हाट इज इट। A digital signature is an electronic signature that can be used to authenticate the identity of the sender of a message or the signer of a document and to ensure that the original content of message or document that has been sent is unchanged। यानी कि ये प्रूफ करने के लिए कि भाई जिसने वो मैसेज या डॉक्यूमेंट को सेंड किया है वो पर्सन ऑथेंटिकेटेड है, वो वही पर्सन है, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। ये देखने के लिए कि भाई बीच में हमारा जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का वो चेंज नहीं हुआ है, वो ओरिजिनल है। कैसे पता चलेगा? साइन से। सो अ डिजिटल सिग्नेचर स्कीम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 एल्गोरिथम। सो बेसिकली इसमें भी हमारी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं। बेसिक 3 एल्गोरिथम्स क्या क्या होंगे? एक तो की जनरेशन एल्गोरिथम, जिसमें कि हमारी एक प्राइवेट की हम यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है वो हमारा असिमेट्रिक पे बेस्ड होगा, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट की आ जा रही हैं। तो इसमें जो इनक्रिप्शन हम करेंगे या की जनरेट करेंगे वो किसी भी एक प्राइवेट की से कर देंगे। नंबर ऑफ प्राइवेट कीज गिवन होती हैं, उसमें से कोई भी रैंडमली हमने कोई भी प्राइवेट की को चूज कर लिया और आउटपुट के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की का यूज कर कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की का यूज करते हुए उसे इनक्रिप्ट कर देंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे। फिर एक साइनिंग एल्गोरिथम हमारी यूज होती है, जो कि जिसमें हमें एक मैसेज दे दिया जाता है और एक प्राइवेट की दे दी जाएगी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? सिग्नेचर को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर एक सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिथम भी होगा, जो वेरीफाई करेगा उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में हमें एक मैसेज कंटेंट होगा, हमारे पास एक पब्लिक की होगी और सिग्नेचर होगा, जिसकी हेल्प से वो ये चेक कर पाएगा कि ये सिग्नेचर जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर के टाइप्स हो गए, एक तो क्लियर साइंड मैसेज in which signature appears as a text block within the context of the letter, यानी कि उसी में हमें जो हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा उसी में हमें एक ब्लॉक की तरह दिख जाएगा सिग्नेचर। और दूसरा डिटैच्ड सिग्नेचर होता है, इट इज सेंट एज अ सेपरेट फाइल विद द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे कोई वो हैंडरिटन सिग्नेचर जैसा नहीं है। सिग्नेचर में हमारे कुछ भी एक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट हो सकता है, जिसके थ्रू हमें बस एक्चुअलिटी का पता चल जाए, रियलिटी का पता चल जाए कि भैया किसने वो भेजा है। तो वो अलग से भी कोई सेपरेट फाइल हो सकती है जिसमें वो प्रूफ हो। देन देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ईमेल सिस्टम में वो यूज़ हो सकता है, लीगल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा एप्लीकेशन। तो जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना, वहाँ पर जहाँ पर हम नहीं चाहते कि फ्रॉड हो, स्कैम हो, तो वहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमें एक सिक्योर नेटवर्क की जरूरत है, और वो सिक्योर नेटवर्क हमें तब मिल सकता है जब हम एक अपना अलग प्राइवेट नेटवर्क बनाकर चलें, जिसमें सिर्फ हमारी ऑथेंटिसिटी, सिर्फ हमारे लोग हों, सिर्फ ऑथेंटिकेट लोग हों जिनको हम ऑथराइज कर रहे हैं, वही लोग उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो वही हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि VPN is a network that uses a public telecommunication infrastructure such as the internet to provide remote offices or individual users with secure access to their ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। हमने क्या किया, जैसे इंटरनेट तो था ही, अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट इटसेल्फ, लेकिन क्या है, हमने अलग से एक अपना स्टोरेज बना रखा है जिसे हम सबको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन पेमेंट बेसिस। तो क्या है, इसी तरीके से हमारा VPN भी हो जाता है कि किस तरीके से हम एक
हमने एक स्पेस लिया हुआ है और उस स्पेस को हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को या यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि वो उसको अपने टाइम पे आके यूज कर लें. गोल ऑफ VPN इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द सेम कैपेबिलिटीज बट एट अ मच लोअर कॉस्ट पे. And a VPN is a virtual computer network that exists over the top of an existing network to allow communication between system connected to the VPN. So जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के बेस, इंटरनेट एक बेस होगा, उसी पर ही हमने एक वर्चुअल नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया. उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में से ही हमने एक स्पेस लिया है जिससे हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं और कमर्शियली हम उसे सेल भी कर रहे हैं. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो टाइप हो गए इसके रिमोट एक्सेस और साइट टू साइट. तो रिमोट एक्सेस जहां पर हम यूजर टू लैन कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, जहां पर हर एक एम्प्लॉय को कनेक्ट कर दिया जाएगा VPN से. और साइट टू साइट में हो जाएगा क्योंकि कोई डेडिकेटेड इक्विपमेंट और लार्ज स्केल एनक्रिप्शन की हेल्प से हमने एक कंपनी को अलग अलग तरीके के के नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और फिर उसको एक स्पेस प्रोवाइड करा दिया, जैसे कि इंटरनेट पर ही हम कर सकते हैं. तो इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों तरीके से इस तरीके के साइट टू साइट टाइप ऑफ VPN को एस्टेब्लिश किया जा सकता है. और इसमें हमें क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड की मिल सकती हैं. बेसिकली एक तो फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक IPSP इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये नया हो गया, विच प्रोवाइड इनहैंस सिक्योरिटी फीचर्स सच एज बेटर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑथेंटिकेशन. तो इसमें हमारे पास कुछ सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, और कुछ ऑथेंटिकेशन जैसे डिजिटल सिग्नेचर जैसे भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. और इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हो गई, जैसे कॉस्ट सेविंग्स, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विद ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी. और लिमिटेशंस हो गई, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं है क्योंकि हमने एक तरीके से लीज पे लिया हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर अलग से एक नेटवर्क बना रखा है हमने. और कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें हमें एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ सकती है कि किस तरीके का हम बेटर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. सो डिटेल में विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन द लाइव सेशन. That's all for this particular video. Thank you.